So, greetings of the day, students. I welcome you all for the online video lecture series on the railways, airport, and waterways. So, this course has been designed for the Department of Civil Engineering students. So, in the continuation to the module 1, we will be covering lecture 6, part 2. The lecture 6 is all about the ballast, its specification, different materials, different characteristics of those materials, and the different tests which has to be performed on those ballast for checking the suitability of that particular material as a ballasting material. Right. So this will be the lecture 6, and it will be the part 2. In part 1, we have covered different type of the ballast material. In this lecture 6, part 2, we will covering the test on the ballast. Right. So if we will look towards the contents of the lecture, so till now we have covered these three parts. In the part 1, you can go and check my lecture 6 part 1 available on the YouTube. And this one, this test on the ballast, basically classified into durability test, crushing test, impact test, and shape test. It will be covered in the part 2, right? This was covered in part 1. This section was covered in part 1, and this section we will covering in this particular lecture, right? So till now we have seen that what are the different materials which can be used for the ballasting. So I have covered 8 to 9 type of material which can be used for the ballasting purpose, right? And we have also seen that the best and ideal material which is used for ballasting is the broken stone, and particularly the igneous rock. Kaun sa rock? Igneous rock, right? And we have also seen the various characteristic of different materials, as well as its specification, where to use, where not to use. If we'll use this type of sleeper, then this kind of material is suitable. If we use wooden type of the sleeper, then this other type of the material is suitable for the ballasting purpose. Then we have also seen what are the different size of the ballasting ballast material which is suitable. And apart from that, we have also covered what is the minimum depth of the ballast section, right? So now in this lecture we'll cover the different test on the ballast. So test we'll look toward the test on the ballast one by one. So let us have a look at that PPT. These all parts were covered in part 1, and we have to cover the entire lecture from this part, that is a different test to be performed on the ballast, right? So first of all, let us have a recap of the previous lecture, right? So we all know that जब पिछले स्लाइड में या सॉरी पिछले लेक्चर में मैंने ये बात किया था कि किसी भी मटेरियल को जब हम बैलेस्टिंग के लिए यूज करते हैं या सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम उसकी सुटेबिलिटी को चेक करते हैं, राइट? तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेक किया जाता है, ठीक है, कि कौन सा मटेरियल वो सुटेबल होगा कि नहीं होगा, राइट? तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे, राइट? तो बैलेस्ट मटेरियल की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए, उसकी पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए हम उस पर कुछ टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, राइट? और उसी को कहते हैं टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट ऑन दी बैलेस्ट. So ballast material quality is defined by its particle characteristic. Therefore, testing of ballast material is required to define this characteristic. So what are the different characteristics? Let us have a look, and what are the different tests which have to be performed to check those characteristics. ठीक है, तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है एक मटेरियल की सुटेबिलिटी को चेक करने के लिए, वो हमें चेक करनी होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी. क्या चेक करनी होती है? उसकी ड्यूरेबिलिटी.
अब ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए हमारे पास बेसिकली तीन तरह के एब्रेशन टेस्ट है। एब्रेशन मतलब रेजिस्टेंस टू हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू हार्डनेस, राइट। तो एब्रेशन का मतलब हुआ रेजिस्टेंस टू हार्डनेस। अब उसमें जो सबसे पहला टेस्ट है या जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो कौन सा है? वो है लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, राइट। तो in order to perform the hardness test on the ballast material, we perform the Los Angeles aberration test, right? Now we'll look towards the different specification and how we perform this test in this entire slide. अब हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस टेस्ट से हमको क्या मिलता है और उससे हम कैसे परफॉर्म करते हैं, राइट। सो लॉस एंजलिस टेस्ट पहले होता क्या है? इट इज अ ड्राई टेस्ट टू मेजर द टफनेस और टेंडेंसी फॉर द ब्रेकेज ऑफ द एग्रीगेट। तो एक एग्रीगेट की ब्रेकिंग टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम जो है लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं एंड इट इज अ ड्राई टेस्ट, राइट। इसमें जो है वाटर का यूज नहीं करते, इसलिए हम इसको ड्राई टेस्ट भी कहते हैं। सो लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट is a dry test which is used to measure the toughness or tendency for the breakage of the aggregate, right? तो पहली चीज तो ये पता चली कि हम किस कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करते हैं लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट से। वो होती है टेंडेंसी फॉर द ब्रेकेज ऑफ एग्रीगेट, टू मेजर द टेंडेंसी फॉर द ब्रेकेज ऑफ द एग्रीगेट। इट इज एक्चुअली चेक्ड बाय द लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, ठीक है। अब इस एब्रेशन टेस्ट को कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें एक पहली चीज तो हम ये जान गए कि ये किस लिए होता है और दूसरी चीज ये ड्राई टेस्ट होता है, मतलब इसमें हम पानी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? 12 स्टील बॉल्स। हम 12 स्टील बॉल्स को लेते हैं एक स्टील ड्रम में, इन अ लार्ज स्टील ड्रम 12 स्टील balls are taken, ठीक है। It consists of 12 steel balls in a large steel drum for कितने रिवॉल्यूशन पे? 1000 रिवॉल्यूशन। कितने रिवॉल्यूशन पे? 1000 रिवॉल्यूशन पे। इम्पैक्ट ऑफ स्टील बॉल का क्रशिंग ऑन दी बैलेस्ट, राइट। सो पहली चीज तो हम ये जान गए कि कितने इसका जो एपरेटस है उसमें वो किस चीज का होता है। वो एक लार्ज स्टील ड्रम होता है जिसमें हम 12 स्टील बॉल्स को डालते हैं और कितने उसको रिवॉल्यूशन पे चलाया जाता है? इट इज अबाउट 1000 रिवॉल्यूशन, ओके। एंड दिस इंपैक्ट ऑफ स्टील बॉल, जो इस स्टील बॉल का इंपैक्ट है, इट कॉजेस द क्रशिंग ऑन द बैलेस्ट, राइट। तो तीन चीज है। पहले तो हमने एक ड्रम लिया, स्टील ड्रम, उसमें हमने 12 स्टील बॉल्स को डाले और 1000 रिवॉल्यूशन पे उसे रिवॉल्व किया, ठीक है। अब उस स्टील बॉल का जो उस पे इंपैक्ट होता है उसकी वजह से जो है बैलेस्ट पे क्रशिंग होती है। The crushing on the ballast is due to the impact of these 12 steel balls। भाई जब 12 स्टील बॉल है, जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो जब उससे वो टकराएगा तो इट विल लीड टू द क्रशिंग ऑन द बैलेस्ट, राइट। अब जो मटेरियल फ्रॉम द टेस्ट शुड सीप विद 1.7 mm सीप। अब हम इसको कितने mm सीप पे सीप करेंगे? 1.7 mm, ठीक है। तो लॉस एंजलिस वैल्यू कैसे निकलेगी? पहले तो W1 क्या है? टोटल वेट ऑफ द स्पेसिमेन, ठीक है। और W2 क्या है? वेट ऑफ द मटेरियल रिटेन्ड ऑन द 1.7 mm सीप। तो W1 minus W2 by W1 into 100 will give you the Los Angeles aberration value, ठीक है। हमने क्या किया? हमने 12 स्टील बॉल को एक स्टील ड्रम में रखा और उसको कितने रिवॉल्यूशन पे चलाया? 1000 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके जो हमारे पास स्टील बॉल्स हैं उसकी वजह से, उसके इंपैक्ट की वजह से हमारे बैलेस्ट पे क्या होगी? क्रशिंग होगी, ठीक है। बैलेस्ट पे क्या होगी? क्रशिंग होगी। तो जो भी मटेरियल का हमको एब्रेशन वैल्यू निकालना है तो पहले हम उस मटेरियल का वेट कर देंगे और उस मटेरियल का वेट होगा W1, ठीक है। और उसके बाद जब उसको हम उस ड्रम में डालेंगे और 1000 रिवॉल्यूशन के बाद निकालेंगे तो 1.7 mm सीप यूज करके हमें उस पे सीप करना होगा,
ठीक है। तो जो रेजिड्यू बचेगा 1.7 mm सीव करने के बाद वो हम वेट कर देंगे, और वो कौन सा वेट हो जाएगा, वो W2 हो जाएगा। और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा, मतलब weight of the specimen and the weight of the residue after sieving it through 1.7 mm sieve, उन दोनों का डिफरेंस का हम रेशियो लेंगे with the weight of the specimen, that is W1 minus W2 upon W1. W1 minus W2, W1 minus W2 एक हमारा निकल के आ गया। W1 क्या है, वेट ऑफ द स्पेसिमेन, और वो क्या है, जो सीव करने के बाद, और इसका किससे रेशियो, W1, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू 100, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, LAA। इसको क्या कहते हैं, लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू। तो इस तरह हम जिस भी मटेरियल को बैलेस्टिंग के लिए यूज करते हैं उसकी लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू इस तरह से, इस इंपेरिकल फॉर्मूले से हम निकालते हैं, राइट। अब लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट के लिए जो लॉस एंजलिस मशीन का यूज करते हैं वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इट कंसिस्ट ऑफ एन स्टील ड्रम, सो दिस इज एक्चुअली योर स्टील ड्रम, राइट, दिस इज योर स्टील ड्रम, ठीक है। ये आपका स्टील ड्रम है, इसमें हम कितने बॉल्स का यूज करते हैं, 12 स्टील बॉल्स का हम यूज करते हैं, और ये 12 स्टील बॉल्स को हम यूज करने के बाद जो 1000 रिवॉल्यूशन पे इसको रिवॉल्व करते हैं। कितने पे रिवॉल्व करते हैं, 1000 रिवॉल्यूशन। तो 1000 रिवॉल्यूशन पे रिवॉल्व करने के बाद जो मटेरियल बचता है उसको हम कितने पे सीव करते हैं, उसको हम सीव करते हैं 1.7 mm सीव पे, और उस सीव करने के बाद जो वेट होता है उसको हम क्या वेट करते हैं, W2, और जो स्पेसिमेन का वेट है माइनस W2 अपॉन अगेन स्पेसिमेन का वेट into 100 will give you the Los Angeles aberration value, ठीक है। ये है, और इससे हम क्या निकालते हैं, ये जब वैल्यू जो निकल के आएगी वो बताएगा the breaking tendency of the aggregate, it will tell you the breakage tendency of the aggregate, right। अब ये तो हो गया, हमको पता चल गया कि ब्रेकिंग टेंडेंसी एग्रीगेट की कितनी है, ये हमने लॉस एंजलिस वैल्यू, लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट से निकाल के लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू निकाल ली, और उससे हमको पता चल गया। अब दूसरा जो टेस्ट है वो होता है क्रशिंग टेस्ट, ठीक है। तो क्रशिंग टेस्ट से हम क्या निकालते हैं, टू टेस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द एग्रीगेट टू क्रशिंग अंडर द व्हील लोड, ठीक है। तो इट मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट, it measures the resistance of an aggregate to crushing under the wheel load। तो ये कौन सा टेस्ट हुआ, ये हुआ क्रशिंग टेस्ट, ठीक है। तो इट मेजर्स, आपका जो लॉस एंजलिस टेस्ट था वो क्या था, वो ड्यूरेबिलिटी को चेक कर रहा था, मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि वो ब्रेक होगा कि नहीं होगा, अपने लाइफ स्पैन में वो ब्रेक होगा कि नहीं होगा। तो ड्यूरेबिलिटी को हमने कैसे निकाला, हमने लॉस एंजलिस का टेस्ट का सहारा लिया, ठीक है। तो लॉस एंजलिस टेस्ट से हमें उसकी ब्रेकेज टेंडेंसी के बारे में पता चली, जो LAA मतलब लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू से हमें पता चली। और क्रशिंग टेस्ट से हम क्या निकालते हैं, वी फाइंड दी इट्स रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू क्रशिंग, किसके अंडर, अंडर दी व्हील लोड, ठीक है। और उसमें हम उसमें जो है LAA निकालते हैं, इसमें एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हम aggregate passing 12.5 mm IS sieve and retained on 10 mm IS sieve is selected for the standard test। हम जो इसमें सीविंग करते हैं उसके लिए जो हमारा सीव है वो होना चाहिए, the aggregate should pass through the 12.5 mm sieve and it should retain on the 10 mm IS sieve, ठीक है, and then it is selected for the standard test, right। Material is placed in a steel mold of 150 into 180 mm deep। उसमें हम स्टील ड्रम का यूज करते हैं, इसमें हम स्टील मोल्ड का यूज करते हैं, और वो उसका जो साइज है वो 150 into 180 mm होता है, राइट। और कितने mm का हम सीप यूज करते हैं, 12.5 mm सीप से पास होना चाहिए और 10 mm सीप पे वो रिटेन करना चाहिए, वही हम स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो 12.5 mm सीप से वो एग्रीगेट शुड पास एंड
10 mmc पे aggregate should be retained. ठीक है, तो it is selected for the standard test. और मटेरियल को फाइनली प्लेस किसमें करते हैं? स्टील मोल्ड ऑफ 150 into 180 mm D. उसके बाद क्या करते हैं? ये तो हो गया पहली चीज, ये पता चली कि हम इससे resistance of an aggregate to crushing under wheel load. We determine the resistance of an aggregate to crushing under the wheel load using the crushing test. And for this, the aggregate should pass 12.5 mm ISC and it should retain on the 10 mm ISC. ठीक है, और इसको जो स्टील मोल्ड में रखते हैं उसका डायमेंशन होना चाहिए 150 into 180 mm D. ठीक है. Now the load is applied through the plunger at a uniform rate of 4 tons per minute until the load is 40 tons and then the load is released. ठीक है, फिर हम उसमें तो रिवॉल्यूशन करते थे. ठीक है, रिवॉल्यूशन करते थे 1000 रिवॉल्यूशन अब उसमें प्रोवाइड करते थे. इस केस में हम क्या करते हैं? लोड को अप्लाई करते हैं प्लंजर के थ्रू. ठीक है, और कितने रेट पे? 4 टन्स पर मिनट. ठीक है, और कब तक प्रोवाइड किया जाता है? जब तक कि लोड फाइनली 40 टन्स का उस पे नहीं हो जाएगा, तब तक हम 4 टन्स पर मिनट की रेट के अकॉर्डिंग हम उस पे लोड को प्रोवाइड करेंगे और फिर लोड को क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे. ठीक है, तो ये भी एक ड्राई टेस्ट है. ठीक है, जैसे कि आपका लॉस एंजलिस टेस्ट एक ड्राई टेस्ट होता है, वैसे क्रशिंग टेस्ट भी क्या होता है? वो भी एक ड्राई टेस्ट होता है. राइट, तो फिर कैसे वैल्यू निकलेगी? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कैसे निकलेगी? पहले हमने कोई ड्राई स्पेसिमेन लिया था, उसका वेट मान लो वो कितना है? वो W1 है. ठीक है, वो W1 है, और जो भी मटेरियल वेट ऑफ द मटेरियल पासिंग थ्रू 2.36 mm ISC इट इज टेकन एज W2. ठीक है, तो एक तो हमने सबसे पहले जो है 12.5 mm ISC से वो पास होना चाहिए और 10 mm ISC पे वो रिटेन होना चाहिए. ठीक है, उसका साइज कितना होना चाहिए? उसका साइज 150 into 180 mm होना चाहिए. ठीक है, फिर हम एक प्लंजर का यूज करते हैं और उस प्लंजर से उस पे हम लोड को अप्लाई करते हैं. तो जब हम प्लंजर से लोड को अप्लाई करेंगे तो वो कितने रेट पे होना चाहिए? 4 टन्स पर मिनट till the 40 tons of the load has been applied, then it is released. ठीक है, तो उससे क्या निकल के आया? उससे तो सबसे पहले W2 by W1. W1 क्या है? वेट ऑफ द ड्राई स्पेसिमेन, और W2 क्या है? the weight of the sample which has been passed through 2.36 mm ISC. तो इसका रेशियो फिर डिवाइडेड फिर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये है इसका वैल्यू. तो W2 by W1 into 100. तो इससे क्या निकल के आएगा? इससे हमें मिलेगा एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू. ठीक है, अब हमने दो चीजें निकाल ली. पहला तो ड्यूरेबिलिटी, मतलब टेंडेंसी टू ब्रेकेज, उसके लिए हमने लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट का यूज किया. फिर हमने रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू क्रशिंग अंडर व्हील लोड, ये हमने क्रशिंग टेस्ट से निकाल लिया. ये भी एक ड्राई टेस्ट है, इसमें हमने 150 into 180 mm D का स्टील मोड लेके उसमें प्लंजर का यूज किया और 4 टन्स पर मिनट के हिसाब से लोड को अप्लाई किया. अब हमको जो निकालना है वो है इम्पैक्ट टेस्ट. अब कौन सा टेस्ट है? वो है इम्पैक्ट टेस्ट. राइट, तो इम्पैक्ट टेस्ट पहले तो ये आप कोई भी टेस्ट जब आप परफॉर्म करते हो तो उससे किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक को आप मटेरियल की किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक को आप डिटरमाइन करते हो. ठीक है, कभी टफनेस आप डिटरमाइन करोगे, कभी उसका हार्डनेस डिटरमाइन करोगे, कभी उसकी ब्रेकेज टेंडेंसी डिफाइन करोगे, ड्यूरेबिलिटी को चेक करोगे. ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सुटेबिलिटी को दिखाता है. ये किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट करने से पहले, एज अ बैलेस्टिंग मटेरियल को सेलेक्ट करने से पहले उसकी सुटेबिलिटी को दिखाता है. ठीक है, कि वो कितना सुटेबल है. ठीक है, तो उसकी जब सुटेबिलिटी को चेक करने के लिए हमको ये टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है. तो ड्यूरेबिलिटी तो हमने देख लिया कैसे निकालेंगे, हमने क्रशिंग भी देख लिया. अब हम इम्पैक्ट निकालते हैं. तो इम्पैक्ट किसको मेजर करता है? ये मेजर करता है टफनेस को. ठीक है, एब्रेशन हार्डनेस को, और इम्पैक्ट किसको मेजर करता है? टफनेस. ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी. टफनेस को अगर लिटिल मीनिंग उसका निकालें तो साइंस कहता है कि इसका मतलब हुआ its resistance to the absorption of the different energy. Right, so impact test actually measures the toughness to sudden shocks and impact. तो किसी
सडन शॉक्स की वजह से जो उसके टफनेस को मेजर करने के लिए हम इम्पैक्ट टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो टफनेस टेस्ट इज यूज्ड, इम्पैक्ट टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द टफनेस टू सडन शॉक्स एंड द इम्पैक्ट लोड, ठीक है। देखो जब भी स्टील आपका जो व्हील्स है उसकी वजह से रेल पे जो डिफरेंट डिफरेंट शॉक्स और वाइब्रेशंस और इम्पैक्ट लगेंगे, तो उसकी वजह से उसको रेजिस्ट करने के लिए उसके ऐसा मटेरियल होना चाहिए, टफ मटेरियल होना चाहिए जो उसके शॉक्स को और इम्पैक्ट को क्या करे, रेजिस्ट कर सके, और उसी को कहते हैं टफनेस, और उसको टफनेस को मेजर करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है। तो इट मेजर्स द टफनेस टू सडन शॉक्स एंड इम्पैक्ट लोड, ठीक है। अब इस केस में जो IS sieve है उस एग्रीगेट साइज ऑफ पासिंग थ्रू 12.5 mm sieve, ठीक है, और एंड इट शुड रिटेन ऑन द 10 mm sieve placed in the steel mold, ठीक है। अगेन 12.5 है IS 12.5 mm IS sieve से वो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, और 10 mm IS sieve पे क्या होना चाहिए, वो रिटेन होना चाहिए, ठीक है। उसमें हम प्लंजर से लोड को अप्लाई कर रहे थे 4 टन्स पर मिनट टिल द 40 टन्स ऑफ द लोड हैज बीन अप्लाइड। हम इस केस में क्या करेंगे, इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू 15 ब्लोज, ठीक है, 15 ब्लोज विद 14 kg वेट ऑफ द हैमर एट अ हाइट ऑफ 380 mm, राइट। तो क्या करते हैं हम इसमें, हम एक मॉल्ड लेते हैं, एक स्टील मॉल्ड लिया, राइट। एक स्टील मॉल्ड पे हम क्या करते हैं, उस पे जिस भी मटेरियल का हमको टफनेस को चेक करना है, इम्पैक्ट टेस्ट को परफॉर्म करना है, उसमें हम उसका वेट करते हैं पहले, उस मटेरियल का, उस स्पेसिमेन का, उस सैंपल का, उस सैंपल का, वो कितना वेट हुआ, वो W1, उस W1 को हमने उस स्टील मोल्ड में डाला, ठीक है। उसके बाद उसको हमने 15 ब्लोज उस पे दिए, 15 ब्लोज, इट इज सब्जेक्टेड टू 15 ब्लोज, ठीक है। और वो ब्लोज किससे दिया जाता है, एक हैमर से, और उस हैमर का वेट कितना होता है, 14 kg, और वो उसका फॉल कितने हाइट पे होता है, 380 mm। तो हमने किसी भी हमने एक स्टील मोल्ड लिया और उसमें किसी भी सैंपल को जिसका हमको टफनेस डिटरमाइन करना है, उसका पहले हमने वेट कर लिया, ठीक है। उस सैंपल को जब हमने वेट किया, उस ड्राई सैंपल को हमने वेट किया, तो उसकी कुछ वैल्यू आई होगी, और उसको हम कहते हैं कि वो W1, उसको हम मान लेते हैं W1। उस वेट को उस स्पेसिमेन उसको स्पेसिमेन में हम डालते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें हम 15 ब्लोज विद अ 14 kg वेट ऑफ द हैमर with a height of 380 mm fall we provide, ठीक है। पहले केस में एब्रेशन में क्या कर रहे थे, उसमें 12 स्टील बॉल को के साथ उसको डाल के उसे रिवॉल्व कर रहे थे, कितने पे, 1000 रिवॉल्यूशन, ठीक है। फिर दूसरे केस में हम क्या कर रहे थे, प्लंजर से लोड को अप्लाई कर रहे थे, कितने रेट के हिसाब से, 4 टन पर मिनट के हिसाब से, टिल 40 kg, टिल 40 टन। इस केस में हम क्या करेंगे, हम 15 ब्लोज प्रोवाइड करेंगे, वेट होगा हैमर का 14 kg और हाइट होगा 380 mm, राइट। तो टोटल वेट ऑफ द ड्राई सैंपल कितना हो गया, W1। और जब 2.36 mm IS sieve पे उसे हम सीव करते हैं, उसके बाद जो मटेरियल पास हो जाता है उसको हम कितना वेट ले लेते हैं, उसको लेते हैं W2, ठीक है। देखो ये जो जब 15 ब्लोस हम उस पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, उसके बाद जो हमारा रेजिड्यू बचता है उसको हम कितने सीप पे पास करते हैं, 2.36 mm, और जितना पास हो जाता है उसको हम वेट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं W2, ठीक है। उसके बाद फिर उसको W2 by W1 into 100, ठीक है, W2 by W1 into 100, उससे क्या निकल के आई, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, उससे क्या मिला हमको, उस मटेरियल की टफनेस एबिलिटी पता चला, ठीक है। तो एब्रेशन टेस्ट हमने परफॉर्म किया, उससे हमें उसकी हार्डनेस यानी कि रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज पता चला, ठीक है। उसके बाद हमने क्रशिंग टेस्ट को परफॉर्म किया, तो रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू क्रशिंग अंडर द व्हील लोड पता चला, ठीक है। फिर हमने इम्पैक्ट को किया, तो उससे हमें उसकी टफनेस के बारे में पता चला कि हाउ मच इट कैन रेजिस्ट द शॉक्स एंड इम्पैक्ट लोड्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो एपरेटस मैंने आपको अभी बताया कि कैसे उसमें यूज करते हैं, 15 ब्लोज प्रोवाइड करते हैं, 14 kg वेट ऑफ हैमर होता है,
तो ये है बेसिकली आपका डिफरेंट एपरेटस जो हम यूज करते हैं। जो ये स्टील मोल्ड का हम यूज करते हैं वो होता है ये, ठीक है। दिस इज योर स्टील मोल्ड which is provided for performing the test. This is basically your tamping rod, right? And this is the way how we perform the test for determining the impact load, right? So ये आपका हैमर है, ठीक है, ये हैमर है, ये आपका बेसिकली 14 kg का होता है। 14 kg hammer is being used, 15 number of blows to be provided is the 15, ठीक है। और ये आपका सिलेंड्रिकल स्टील कप है जो कि ये है, इसी को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं और इसमें हम W1 वेट करके सैंपल को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। These are your lifting handles, these are your hammer guide bars, this is your hammer, this is your chamfer, and this is your cylindrical steel cup, and this will be your base. So this is actually your entire equipment which is used for determining the impact load, impact test on the different types of aggregate, ठीक है। तो जब इस लेक्चर में मैंने शुरू किया तो डिफरेंट टेस्ट मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करना स्टार्ट किया था। तो उसमें पहला हमने आपको ड्यूरेबिलिटी टेस्ट बता दिया जो लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट का यूज किया। देन दूसरे टेस्ट में हमने ये देखा कि हम कैसे उसकी क्रशिंग वैल्यू को निकालते हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा कि कैसे टफनेस यानी कि इंपैक्ट वैल्यू को निकाला जाता है। अब एक और टेस्ट है, हमने LAA निकाल लिया, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू निकाल लिया। अब अगला जो टेस्ट है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी शेप को डिफाइन करना, ठीक है। तो उसकी शेप को डिफाइन करने के लिए 2-3 टेस्ट हैं जो परफॉर्म करते हैं। 2 टेस्ट बेसिकली हम परफॉर्म करते हैं किसी भी एग्रीगेट को इस शेप को डिटरमाइन करने के लिए। हम उसकी या तो फ्लैकीनेस इंडेक्स को निकालते हैं या तो इलोंगेशन इंडेक्स, ठीक है। तो चौथा जो टेस्ट है वो है शेप टेस्ट, ठीक है। अब उस शेप टेस्ट को हम कैसे करते हैं, वो पहला जो है वो है फ्लैकीनेस इंडेक्स, ठीक है। द फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल whose least dimension thickness is less than the 0.6 of their mean dimension, ठीक है। तो पहला है फ्लैकीनेस। फ्लैकीनेस क्या डिटरमाइन करता है? फ्लैकीनेस एक्चुअली इट डिटरमाइंस, इट इज अ इंडेक्स, इट इज अ बेसिकली न्यूमेरिकल इंडेक्स of an aggregate is the percentage of weight, percentage by weight of the particle whose least dimension, ठीक है, मतलब thickness whose least dimension is less than the 0.6 of their mean dimension, ठीक है। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स इज बेसिकली 0.6 into 0.6 into मीन डायमेंशन, ठीक है। जो आपका लीस्ट डायमेंशन है, जो आपका लीस्ट डायमेंशन है मतलब जो डायामीटर है, थिकनेस है, सॉरी, जो थिकनेस है वो कितना कम होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन द 0.6 ऑफ द मीन डायमेंशन ऑफ एन एग्रीगेट। तो ये किससे निकालते हैं? ये फ्लैकीनेस से निकालते हैं, फ्लैकीनेस इंडेक्स। फिर इलोंगेशन इंडेक्स क्या है? उसमें 60%, इसमें कितना है? 180%। तो इलोंगेशन इंडेक्स ऑफ एन एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द पार्टिकल whose greatest dimension, मतलब क्या greatest dimension क्या होता है? लेंथ। मिनिमम डायमेंशन, लीस्ट डायमेंशन क्या होता है? थिकनेस। तो ग्रेटेस्ट डायमेंशन क्या हुआ? लेंथ इज ग्रेटर देन द 1.8 times of their mean dimension. The elongation test is not applicable to sizes smaller than 6.3 mm, ठीक है। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स ये डिटरमाइन करता है कि जो उसका लीस्ट डायमेंशन है उस एग्रीगेट का, वो है आपका थिकनेस। इट शुड बी लेस देन दी 60% ऑफ देयर मीन डायमेंशन, ठीक है, 60% ऑफ देयर मीन डायमेंशन। और इलोंगेशन इंडेक्स क्या कहता है? इलोंगेशन इंडेक्स ये कहता है कि जो उसका ग्रेटेस्ट डायमेंशन है मतलब लेंथ, इट शुड बी ग्रेटर देन दी 180% ऑफ देयर मीन डायमेंशन, ठीक है। तो इलोंगेशन टेस्ट बेसिकली 6.3 mm साइज से स्मॉलर साइज के लिए एप्लीकेबल, सुटेबल नहीं। तो शेप टेस्ट हम परफॉर्म करने के लिए 2 तरह के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। वो होता है फ्लैकीनेस, उसकी फ्लैकीनेस को बताता है, ठीक है, फ्लैक कितना मटेरियल फ्लैकी है, और इलोंगेशन टेस्ट से वो कितना इलोंगेट हो सकता है,
तो उससे वो क्या पता चलता है, उसकी शेप पता चलती है, उसकी एंगुलरिटी के बारे में पता चलता है। राइट, तो 4 टेस्ट हमने परफॉर्म किए। पहला था हमारा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, मतलब लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, उसकी ब्रेकेज टेंडेंसी को बताया। देन हमने क्रशिंग टेस्ट को परफॉर्म किया। क्रशिंग टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमने ये पता किया कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द क्रशिंग थ्रू द व्हील लोड। ठीक है, फिर हमने तीसरा इम्पैक्ट टेस्ट का परफॉर्म किया। इम्पैक्ट टेस्ट से हमको क्या पता चला, रेजिस्टेंस टू दी टफनेस। फिर हमें चौथा शेप, उसकी एंगुलरिटी के बारे में पता चला, उसके शेप के बारे में पता चला, जो कि दो तरह से होता है। एक होता है फ्लैकीनेस, मतलब उसमें उसकी मीन डायमेंशन 60%, लीस्ट डायमेंशन 60% ऑफ द मीन डायमेंशन से कम होना चाहिए। और इलोंगेशन इंडेक्स में क्या होता है, जो आपका ग्रेटेस्ट डायमेंशन है वो 180%, यानी कि 1.8 टाइम्स, इट शुड बी ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स ऑफ देयर मीन डायमेंशन। और ये 6.3 mm साइज जो पार्टिकल है उससे कम के पार्टिकल के लिए सुटेबल नहीं। राइट, सो we have seen this much of test. So this comes to the end of the lecture 6 part 2 also. So the lecture 6 was all about the ballast materials and its test for its suitability. So in part 1 हमने cover किया different types of the ballast material, that were the 8 types, और उसके suitability को चेक करने के लिए हमने टेस्ट परफॉर्म किया। उस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं, वो 4 टेस्ट है और 4 कैरेक्टरिस्टिक को हम डिटरमाइन करते हैं, फिर उसकी suitability को चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए हमने टेस्ट परफॉर्म किया और वो 4 टेस्ट है वो हमने पार्ट में। So this is all about the about the ballasting material. So thank you so much, thank you, and thank you for having the patience. So have a good day. We'll start with a new lecture in coming days. Thank you guys.